Yeah, was here slide series. Yes. Yes. Yes, etc. ये ऊपर ही है सर ये हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ये पावर पॉइंट ये पावर पॉइंट लो कन्वर्ट ये मैं दिमाग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the excellent and excellent. Today we are going to start the finding the difference of Mr. Muhammad Abu Hassan and his MSc student. He will start his presentation and at the end, Dr. Abdul Samad, the external examiner, and all the other participants are allowed to their techniques. Please, Abu Hassan, start your presentation. First of all, I would like to thank the respected juries, and second, I would like to thank you, Dr. Irfan, who supervised me and helped me throughout this research study. My topic is minimizing end-to-end delay problem in flying ad hoc network using fisheye state routing protocol. These are the research articles which I have published in well-known research journals, and last one, this one is under review and will be inshallah will be published in ASEAN conference. And these are our collaborations with our classmates. Content of presentation. These are the points which I have to cover throughout my presentation. Introduction. So the question is here that what is meant by ad hoc network and why we need ad hoc networks. So ad hoc network replace traditional network. For example, traditional networks is very expensive. If a network is going down, so the whole network will suffer. If a base station is going down, then a whole network will be suffered. And traditional network work on predefined rules. For example, there will be wire, there will be switches. So in between, if one switch goes down, so the whole network will be disrupted. So ad hoc networks appears. Ad hoc networks are associated with temporary basis or which provide services for specified situation. For example, if we have a flood situation, we can't install network or we can't हम वहाँ पे केबल नहीं बिछा सकते, तो क्या करते हैं हम एडहॉक नेटवर्क पे चले जाते हैं। हमें ऐसे नेटवर्क टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए ताकि हमें सर्विसेज भी दे और हमारा मसला भी सॉल्व हो जाए। एडहॉक नेटवर्क्स जो है ये ऑर्गेनाइज या अपने आप को खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बता दिया प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में कि जो प्रीवियस नेटवर्क्स थे उसमें हमारे पास वायर चाहिए, हमारे पास राउटर चाहिए। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। हर नोड इंडिपेंडेंटली पैकेट सेंड कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। सो
These are the type of ad hoc networks: mobile ad hoc network, regular ad hoc network, and flying ad hoc networks. Mobile ad hoc network which are in dynamic in nature. For example, their topology will be changed up to some time. The node move from one place to another. That's why the mobile ad hoc networks are dynamic. Of course, the ad hoc networks is dynamic because they change their topology time to time. That's why it is called ad hoc network. And mobile ad hoc network appeared in mid 1990s. So the other type of ad hoc networks is regular ad hoc network, which is semi-organized to avoid rush areas, rush traffic hours. For example, semi-organized means that we have a road and people travel in this road. So क्या होता है हमारे पास सीधे ऑर्गेनाइज में कि हमने रोड साइड पे पहले से सेंसर लगाए हुए होते हैं ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि सामने रश आवर है, हम उसको अवॉइड कर सके। वो गाड़ी जो है व्हीकल वो जो है रोड साइड पे जो सेंसर लगे हुए होते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आगे से सिग्नल पास करता है। सी ऑर्गेनाइज है कि हमने पहले से रोड बनाई हुई है, आप किस रास्ते भी जा सकते हैं, किस रास्ते भी जा सकते हैं। That's why it is called semi-organized. And the benefit of this network is to avoid rush hour traffic. The third one is flying ad hoc network. Flying ad hoc networks mean that the network will be created into air and the node will be flying. For example, and it is originated from MANET and VANET, and these features are embedded into flying ad hoc networks. Unmanned aerial vehicles are used in flying ad hoc network to collect data. Classification of UAVs. There are two types of classification. One is rotary wing and one is fixed wing. So हमारे पास जो अभी न्यू रिसेंटली तुर्की ने जो ड्रोन्स बनाए हुए हैं, तुर्की को क्यों एडवांटेज हासिल है जो उसके करीब है, क्योंकि उनके पास जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं। That's why this network is very important in nowadays. So application of UAVs, there are two applications of UAVs, multiple and single. These are the picture of single, multiple, fixed and rotary wings. As we know that one is base station, our UAVs are connected to base station and transmit data or send data to the base station. Same the situation here that multi UAVs, we have two networks to expand our networks. For example, this is Peshawar and this is, for example, Sarsadar. I want to connect. For example, I want to connect Peshawar and Sarsadar both. So we will deploy this network. And this one is rotary and one is rotary wing and fixed wing. Rotary wing means जिसके जो wings होते हैं और fixed wing UAVs वो होते हैं जो कि fixed आप एक puppet के जरिए उसको fly करते हैं। For example, आपके पास पहले से एक ऐसी डिवाइस होती है, आप उसके जरिए उसको फ्लाई करते हैं या उसको रनवे के जरिए छोटी सी स्टेबल के मुताबिक छोटी सी रनवे होती है, उसके जरिए हम इसको फ्लाई करते हैं। और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर आप इसको उठाते हैं जो फिक्स्ड है, ये आप किसी जाल में इसको फिक्स किसी जाल लगी होती है, आप उसके जरिए उसको फिर उतार देते हैं। So the problem statement here is, अगर हम नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, और हमारे पास कम्युनिकेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं हो रही। किस तरह एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि ये जो नोड्स है ये
टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सेकेंड दूसरे सेकेंड में वहां भी मैं जा सकता हूँ, इस साइड पे भी जा सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। तो इस वजह से कम्युनिकेशन थोड़ी लैग कर रही है यहाँ पे। और इस कम्युनिकेशन जो इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमें एक एफिशिएंट प्रोटोकॉल चाहिए, ताकि जो इसकी जो नोड्स के बीच जो डेटा किस वे से जाएगी वो डिफाइन कर सके, और ऐसी एफिशिएंट प्रोटोकॉल हो कि जिसमें ये एंड टू एंड डिले बहुत कम आए। Protocol means that question rise here that what is mean by protocol? Protocol means set of predefined rules. For example, हमारे पास पहले से predefined protocols भी हैं। इस reactive है, proactive है, हमारे पास distributed hybrid है, heterogeneous है, different तरह के candies हैं। हर protocol की अलग-अलग वर्किंग है, अलग अलग वर्किंग बिहेवियर है, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस है हमारे पास। So my objective is to cover above mentioned problem. This study aims to develop suitable routing protocol for applying ad hoc network scenario which will minimize end-to-end delay and applying ad hoc network। जिस तक अब जैसे ये आपकी जो पिछली स्लाइड थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो स्टेटमेंट में वजह से ज्यादा बुलेट्स में सर बुलेट्स में भी है साइज और साइज का सेक्शन की यहां से तो खैर बाद में करते हैं। सो बट ये फॉर योर लर्निंग आइदर की अगर आप प्रेजेंटेशन दो तो उसके लिए चीज का है कि जो ऑडियंस है उसको रीड कर सकते हैं। यस, एट द एंड हम परफॉर्मेंस एफएसआर हमारे पास अभी यहाँ पे नाम भी आ गए, फिश स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस हम किस पे बेस पे करेंगे कि हमें पता चल जाए जो हमने काम किया हुआ है ये एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे, ग्राफ निकालेंगे, इसकी जो डेटा है उसको इसकी एनालिसिस करेंगे। So, a very extensive literature review is presented in my research pieces. मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट इस पे कर देता हूँ। There are two types of routing protocols. असल में flying ad hoc network जो है ये मैनेट एंड मैनेट से ही इमर्ज हुआ है। तो इस वजह से फ्लाइंग मैनेट एंड मैनेट के प्रोटोकॉल इसमें अप्लाई हुए, एक वो प्रोटोकॉल है। दूसरा जो स्पेशली डिजाइन प्रोटोकॉल इसके लिए मैनेट के लिए अभी बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एरिया न्यू है, इमर्जिंग है, अभी इस पे काम हो रहा है, तो इस वजह से इसमें हमारे पास मैनेट और मैनेट के प्रोटोकॉल्स भी और स्पेशली डिजाइन प्रोटोकॉल भी हैं। ये मैंने अपने लिटरेचर रिव्यू में समराइज किए एक टेबल की फॉर्म में कि हमारे पास ये प्रोटोकॉल्स है DHDV, OLSR, DA, OLSR, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। उसमें एडवांटेजेस भी है, नहीं कि ये प्रोटोकॉल बेसिक बनाए गए हैं, इसके एडवांटेजेस भी है, साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी है जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जांपल DHDV लूप्स खत्म हो रही है। पिछले प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था, लूप क्रिएट हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर को पैकेट सेंड कर रहा हूँ, आगे वो किसी दूसरे नोड को सेंड कर रहा है, दूसरे नोड को पता नहीं चला, वो दोबारा मुझे सेंड कर रहा है, नेटवर्क में एक लूप बन रहे हैं। तो इस एडवांटेजेस इसको खत्म के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ गए हैं हमारे पास कि introduce more delay and congestion problem in a network which is not feasible in real time। इस तरह मैंने चार्ट में बता दिया कि अगर ड्रोन हमारा उड़ रहा है और वो तो टाइम टू टाइम रियल टाइम में हमें डेटा सेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, हमारा ड्रोन उड़ रहा है और कुछ बीच में से कुछ पैकेट लॉस हो गए। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, हमें वो डेटा में सेंड ही नहीं हुई, तो इसके कंडीशन भी आ रही।
ये हमारे पास पूरी लिस्ट है कि इसमें एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सेकंड वन इज protocol specially designed for PANETs. There are special routing protocols which were designed according to the need and specification of flying ad hoc network. इस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल according to the need and specification of flying ad hoc networks अभी बन गए। 2020 में भी इस पे काम हो रहे हैं, आगे भी होता रहेगा क्योंकि अपडेट आ रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ माय मेथोडोलॉजी इज टू इंप्लीमेंट फिश हाई स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इन फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क्स। सो fish high state routing protocol, the name suggests what is mean by fish high. So fish high means that it is originated from the working of fish high. Fish जो होती है ये जब इसकी नजर किसी चीज पे बढ़ते वो उसके हॉप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम वन हॉप फार अवे फ्रॉम द सन, टू हॉप, थ्री हॉप, फिर जो है इसको हॉप्स में डिवाइड कर देती है। That's why it is called fish high state routing protocol, and it has three major working approaches. Number one is neighbor discovery. Number two is information dissemination and route computation. FSR algorithm. I will explain the working of all these three approaches into my algorithm. For example, जी सर, इसको सर मैंने नहीं, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया सर। ये बता रहे हैं, you said that this is my algorithm. We are very confused that you have designed this algorithm. In my first of all क्या होता है, flowchart सर मैंने साइड में flying aircraft taken the pictures of the skies to show the originality in the one also. अच्छा क्या होता है, फ्लाइंग एडॉक सबसे पहले जब डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो किसी नोड के पास किसी दूसरे जो नेटवर्क में नोड है उनके रिलेटेड डेटा नहीं होती या उनको पता नहीं होता कितने हॉप्स पे जो नोड 1 फॉर एग्जांपल नोड 1 नोड 2 नोड 3 अप टू सो ऑन ये मेरे से दूर है। क्या होता है, इनिशिएट नाइबर डिस्कवरी फेज। सबसे पहले क्या हो जाता है, नाइबर डिस्कवरी फेज हम इसमें इनिशिएट हो जाते हैं ताकि पता चल जाए कि नेटवर्क में कौन कौन से नोड्स इंक्लूड है और कितने कितने हॉप्स पे है। हॉप्स तो आगे आ रहे हैं लेकिन नोड्स कौन कौन से नोड नेटवर्क में मौजूद है। इससे क्या होता है, फॉर ईच यूएवीज इन नेटवर्क, हर यूएवी नेटवर्क में क्या कर देते हैं, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो सेंड कर देता है अपने ट्रांसमिशन रेंज में। ट्रांसमिशन रेंज डिपेंड करता है एंटीना, फॉर एग्जांपल आपने ड्रोन दिया हुआ है तो इसकी क्वालिटीज है अलग अलग, हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी हार्डवेयर ली हुई है। अगर ज़्यादा आपने एक्सपेंसिव लिए तो उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। अगर आपने अपने नीड्स के मुताबिक लिए तो उसके मुताबिक ये रेंज जो यूएवी है वो बेस करती है इसके मुताबिक। अगर आपकी नीड है तो अपने नीड के मुताबिक आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं नेटवर्क में कम यूएवी यूज करूं तो आप ऐसी हार्डवेयर ले लें ताकि इसकी रेंज ज़्यादा हो। इसके बाद क्या होता है, नाइबर डिस्कवरी पेज के लिए नाइबर को जब मैसेज सेंड हो जाता है तो टाइमर ऑन हो जाता है। हर यूएवी के साथ पास टाइमर ऑन हो जाता है। क्या करता है, अगर उसी टाइमर के अंदर एक यूएवी ने रिस्पॉन्ड कर दिया
तो वो अपने नाइबरिंग जो लिस्ट है उसमें वो उसको कंसिडर कर देंगे, अगर नहीं किया तो उसको फिर कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज देखिए सेकेंड स्टेप इज इनिशिएट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या होता है, इसके बाद फिर सबके पास आ गई नेबरिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आ गई। इसके बाद क्या होता है, फॉर ईच यूएवी ब्रॉडकास्ट एलएसपी पैकेट्स। इसके बाद एलएसपी पैकेट जो है ये भी एक स्पेशल पैकेट है, नेटवर्क में वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। हर यूएवी जो है नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है एलएसपी, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो है जिसको हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कहते हैं, उसको हम जो यूएवी है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, वहां पर नहीं जाता हूँ, या मैं अपनी डायरेक्शन को रैंडमली मैं मूव करता रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने साथ वाले जो मेरे पास वन पे है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दूसरा नोड है, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ और ये मेरे पास एक नोड है, दूसरा नोड है, अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो मैं इसको सेंड कर दूंगा अपनी जो एलएसपी की पैकेट है उसको हाईएस्ट विद हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर से क्या होता है, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं इसके साथ हाईएस्ट जो एक पैकेट है उसको मैं सेंड करता रहता हूं, जो मेरे पास है, जो मेरे करीब है, जो मेरे एडजेसेंट पेज हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एडजेसेंट पेज है उसको पता चल जाता है कि ये जो है हाईएस्ट सीक्वेंस पे आ रहा है कि नहीं, हाईएस्ट सीक्वेंस पे नहीं आ रहा है। इसमें मसला भी आ रहा है कि अगर नेगेटिव में चला गया तो क्या होगा, फिर वो डिस्कार्ड हो जाता है, फिर भी इसकी दोबारा पर वो करता है, दोबारा पर मैन डिस्कवरिंग और फिर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अगर मेरे पास मैं मूव कर गया हूँ और यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, तो उसको मैंने सेंड की है, वो नोड क्या करता है, वो अपने एडजेसेंट पेज पे उसके साथ एडजेसेंट पेज उसको सेंड कर देता है। द लास्ट स्टेप इज शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग फेज। इसके बाद क्या होता है, सबके पास एलएसपी पैकेट्स भी आ गए और नेबरिंग इंफॉर्मेशन भी आ गई सबके पास, तो फिर क्या होता है, ये इसमें शॉर्टेस्ट पाथ को फिर फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह फाइंड करेंगे, वो डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम के जरिए इसको फाइंड करेंगे। अगर मिनिमम हॉप पे, फॉर एग्जांपल मैं सर से 1 हॉप पे हूँ और इस साइड पर अगर मैं जाऊंगा तो मैं 4 हॉप पे हूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर ये डिफाइन करेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे, टोपोलॉजी टेबल, उसको अपडेट करेंगे कि सर एक नोड जो है वो कितने डिस्टेंस पे है या दूसरा नोड कितने डिस्टेंस पे है। अगर चेंज होती जा रही है, एक टोपोलॉजी टेबल जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, तो वो इसके साथ ये नोड जो है या टोपोलॉजी नोड मूव कर रहे हैं, टोपोलॉजी टेबल भी जो है वो इसके साथ चेंज होती जा रही है। इसमें से आपको क्या पता है? सर इसको मैंने अपने क्लाइंट एडहॉक नेटवर्क्स पे इंप्लीमेंट किए। इससे पहले ये कोई किसी ने भी टाइम चेंज किया सर, नाउ एनवायरनमेंट सेटअप मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो है NS2 में किए और वर्जन उसकी है 2.35 इसकी वर्जन है। ये इसकी लिस्ट है कि NS2 कैसी टूल सिमुलेटर, इस पे हम वायरलेस वायर्ड सब कुछ जो नेटवर्किंग के रिलेटेड जो है वो काम कर सकते हैं। ये मेरी पैरामीटर्स है कि मैंने सिमुलेटर NS2 वर्जन 2.35, ये मेरी टोपोलॉजी एरिया है 1000 क्रॉस 1000 मीटर और ये मेरा सिमुलेशन टाइम 180 सेकंड मैंने लिए। अब यहाँ पे मोबिलिटी मॉडल भी मैंने
एक्सटेंड मोबिलिटी मॉडल ये इसको रैंडम वेट पॉइंट कहते हैं। रैंडम वेट पॉइंट तो मैं आप यहाँ से जाता हूँ, मैं रैंडमली एक डायरेक्शन को चूज करता हूँ, दूसरे साइड में चला जाता हूँ, फिर वहां से मैं चूज करता हूँ तीसरे साइड में चला जाता हूँ। नंबर ऑफ नोड जो है मेरे पास 30 है, 60 एंड 90, लेस डेंसर डेंसर एंड मोर डेंसर मैंने इस पे कैटेगराइज किए। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो टू रे ग्राउंडेड है हमारे पास, और उसकी पास टाइम 1 सेकेंड है, मिनिमम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, ये कुछ सिमुलेशन इलस्ट्रेशन है इसकी कि ये लेस डेंसर 30 नोड्स, 60 नोड्स एंड 90 नोड्स, इसकी एक नेटवर्क मैंने बनाई है। अच्छा, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ, अब हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस एफएसआर की जो एओडीवी, डीएसडी और एलएसआर इसके साथ की हुई है। मैंने क्यों की इसके साथ, क्योंकि ये भी लिंक स्टेट पे ही बेस करते हैं, ये भी एक टोपोलॉजी फैमिली में आ रही है, इस वजह से मैंने ये प्रोटोकॉल चूज किए हैं। अच्छा, कंपैरिजन पैरामीटर जो है, मैंने ये कंपैरिजन पैरामीटर्स लिए कि एवरेज एंड टू एंड डिले, फिर मैंने थ्रूपुट लिए, फिर पैकेट ड्रॉप एनालिसिस लिए, चैनल यूटिलाइजेशन लिए और लिंक वर्सेस थ्रूपुट मैंने लिए। अच्छा, एंड टू एंड डिले मैंने किस तरह कैलकुलेट की है। एवरेज एंड टू एंड डिले which represent the average time taken by a packet to reach its destination. For example, यहाँ से एक पैकेट ओरिजिनेट हो गया और वहां तक पहुंच गया, उसकी 10 सेकंड लेंगे। यहाँ से जितने सेकंड यहाँ से लेकर वहां तक मैं उसको माइनस करूंगा, डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल 10 सेकंड तो आप वहां तक पहुंच गई, यहाँ से ओरिजिनेट होने में 1 सेकंड लगा, तो इसको मैं इससे माइनस करूंगा, मेरे पास इसकी एवरेज डिले आ जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास टेबल है और इसका ग्राफ भी है कि 30 नोड, 60 नोड एंड 90 नोड्स मेरे पास लेस डेंसर डेंसर एंड मोर डेंसर में कितने। अच्छा, ये जो ये मिली सेकेंड्स में है, मिली सेकेंड में मेरे पास डिले आ रही है। अब हमने पैकेट ड्रॉप एनालिसिस की, जितने पैकेट ड्रॉप हुए हैं हम इसकी एनालिसिस करते हैं एज अ कंजेशन माइयर। जो नेटवर्क पे एक कंजेशन बन जाता है, जो नेटवर्क में पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, ये और दूसरा पैकेट आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो हम इसको एज अ कंजेशन माइयर हमने ये दिया। टू लीडिंग कॉजेज ऑफ नेटवर्क कंजेशन, इंक्रीज इन डिले, इंक्रीज इन ड्रॉप रेट। दो तरह के हमारे पास कंजेशन किस तरह बनती है, increase in drop rate and increase in delay। अच्छा, ये मेरे पास एफएसआर की टोटल पैकेट ड्रॉप हुई है, ये एओडीवी की हुई है, ये डीएसडीवी की, ये 30 नोड सिनारियो में है, ये 60 नोड सिनारियो में है, और लास्ट वन जो है ये 90 नोड्स के सिनारियो में है। हमने पर सेकेंड इसमें कितनी पैकेट ड्रॉप की है वो भी इसमें फाइंड आउट की है। अब ये इसकी ग्राफ आ गई हमारे पास के, ये टोटल 30, 60 एंड 90 इसके हमने इस टेबल के जरिए जो जो भी डेटा हमने एक्सट्रैक्ट की है इसके जरिए हमने ये ग्राफ सारे बनाए हुए हैं। अच्छा, पैकेट डिलीवरी रेशियो पीडीआर, जिसे हम पीडीआर भी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पैकेट आर रिसीव्ड बाय अ नोड इन अ गिवन नंबर ऑफ टाइम। एक गिवन नंबर ऑफ टाइम होता है जो कि एक नोड जो है वो डेटा को रिसीव करता है। इन दिस रिसर्च स्टडी पैकेट डिलीवरी रेशियो इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉलोइंग फार्मूला। इस रिसर्च स्टडी में मैंने इस फार्मूले के जरिए इसको डिराइव की हुई है। प्रीवियस में ये मेरे पास टोटल पैकेट्स है, टोटल पैकेट्स, ये ड्रॉप पैकेट है और मैंने पीडीआर निकाली है, जो कि टेबल से हमें नजर आ रहा है कि पैकेट डिलीवरी रेशियो ऑफ एफएसआर इज मोर देन अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अच्छा, पीडीआर इन नाउ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 25.24 यहाँ पर भी देख सकते हैं।
ओवरऑल इसकी जो PDR है वो एज कंपैरेटिवली अदर राउटिंग प्रोटोकॉल अच्छी आ रही है। अच्छा, अब नेटवर्क और चैनल यूटिलाइजेशन, चैनल कितना यूज हुआ है इसको हम नेटवर्क और चैनल यूटिलाइजेशन कहते हैं। मीन दैट हाउ मच बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल और लिंक इज बीइंग यूज्ड, द ओवरऑल बैंडविड्थ और डेटा रेट और नेटवर्क यूटिलाइजेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड नेटवर्क यूटिलाइजेशन और बैंडविड्थ। हमने इस फार्मूले के जरिए नेटवर्क यूटिलाइजेशन को डिराइव की है। ये मेरे पास तीनों सिनारियों के डेटा है। हमने नेटवर्क को मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज, ज्यादा से ज्यादा कितना चैनल यूटिलाइज हुआ है, कम से कम कितना हुआ है और एवरेज कितना हुआ है। एक प्रोटोकॉल एवरेज कितना यूज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर रहा है, कम से कम कितना यूज कर रहा है। ये इसके ग्राफ्स हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। अब हमने यहाँ पे इसकी थ्रूपुट भी फाइंड की है। The total number of successfully received or delivered packet per unit time is known as throughput. एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितने भी डेटा रिसीव हुआ है उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। यूनिट टाइम जो है एक स्पेसिफिकली हम एक स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में किसी ने 2, 3, 6, 8, 36 इस तरह एक यूनिट टाइम को डिफाइन की हुई है, स्टैंडर्ड है। और थ्रूपुट का ये फार्मूला है। हमारे पास थ्रूपुट के जो 30 नोड्स के जो टेबल है, जो डेटा आ रहा है, ये हमारे पास FSR कितनी आ रही है, ODB की OLSR, ये सारा जो है थ्रूपुट का डेटा हमारे पास आ रहा है। और ये इसके ग्राफ से 30 नोड्स, 60 एंड 90 नोड्स। अब हमने एट द एंड हमने क्या किए कि कुछ प्रोटोकॉल्स की जो चैनल यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा आ रही है। हमने क्या करना है, सिर्फ चैनल यूटिलाइजेशन, हमें ये नहीं बताना कि एक चैनल एक प्रोटोकॉल कितना यूज कर रहा है। हमें ये पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इससे पता नहीं चलता कि चैनल कितना यूटिलाइज हुआ है। हमें उसके साथ साथ उसकी डिलीवरी या थ्रूपुट को भी देखना है कि इसकी थ्रूपुट कितनी आ रही है। तो इन दोनों का भी मैंने फिगर 5.7, फिगर 5.8 एंड फिगर 5.9 में इसकी एक ग्राफ बनाई हुई है। ये मेरे पास टेबल है कि FSR ने चैनल कितना यूटिलाइज किए 30 नोड्स पे, 60 नोड्स पे एंड 90 नोड्स पे। ये इसकी आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा कि चैनल यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी थ्रूपुट कम है। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि थोड़ा जो है ये अच्छा है बाकी सारे प्रोटोकॉल से। अब कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पे देखें तो FSR की अच्छी आ रही है, मतलब जितना चैनल इसने यूटिलाइज किया है उस हिसाब से, इस रेशियो से इसकी थ्रूपुट भी अच्छी है। तो एट द एंड इसको अगर मैं समराइज करूं तो हम एक प्रोटोकॉल को उसकी चैनल यूटिलाइजेशन के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटोकॉल अच्छा है या ये प्रोटोकॉल बुरा है। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। जो FSR की है इसकी जो PDR है वो भी मैक्सिमाइज हुई है इस सिचुएशन में, इसकी थ्रूपुट एंड चैनल यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमाइज हुई है एंड मिनिमाइज एवरेज एंड टू एंड डिले एंड पर सेकंड ड्रॉप रेट, इसकी पर सेकंड और एंड टू एंड डिले इसकी मिनिमाइज हो गई है। ये रेफरेंसेस है, मैंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए जो इस स्लाइड में मैंने जो रेफरेंसेस यहाँ से मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। Very much for your presentations. Now I request the audience if they have any questions. ये जो आप कह सकते हैं अपनी ड्राइंग के
DRF and so drones या alien vehicles में क्या ऐसी चीज डिफरेंट है बाकी moving objects की जमीन पे चलते हैं कि उनको क्या प्रोटोकॉल ये इसकी सर हमने एक रिसर्च आर्टिकल में जो पब्लिश हुई है इसमें ब्रीफली लिखा हुआ है कि इसकी लो कॉस्ट है, इसकी वर्सेटिलिटी ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजास्टर हिट एरिया है, यहाँ पे या यहाँ पे वॉर हो चुकी है, मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। इस नेटवर्क को कोई ह्यूमन जो जमीन पे कोई ह्यूमन जाके उसको एस्टैब्लिश करेगा ना, जाके वहाँ पे नोड को डिप्लॉय करेगा। फ्रेंड में क्या होता है, हम बेट यहाँ से बेट के उसको यूएवी को उसको अप्लाई करके एक जगह पे जाके जहाँ पे हम मॉनिटर करना चाहते हैं वहाँ पे एक नेटवर्क बना देंगे। तो ये इसीलिए बाकी जो नेटवर्क से जो इसके जो एडहॉक नेटवर्क से मैनेट एंड मैनेट इसीलिए इसे डिफरेंट। और इस वजह से ये क्यों चाहिए हमें कि न्यू इसमें आ जाए, क्योंकि रियल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ और आपको सुनाई ना आ रही है, किसी ऑडियंस को सुनाई ना आ रही है, मैं यहाँ पे बोलता जा एनिमीज आ गई है, एनिमीज आ गई है, व्हीलर और आपको वही आवाज़ नहीं आ रही, तो कम्युनिकेशन में कुछ मसला आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, डिले आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ गेट से कोई वायरस से यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज वो करना चाहते हैं कि पुराना पासवर्ड कुछ कोई आ गए, आप ऐसे सेफ प्लेसेस पे चले गए, आप हाइड हो जाए। अगर वहाँ से हमें मैसेज वो कन्वे कर रहे लेकिन हमें डिलीवर नहीं होगा, तो ये इतना सेंसिटिव नेटवर्क है, ये क्रिटिकल नेटवर्क है, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सर इसकी अलग इसकी आ जाती है। इसमें सिक्योरिटी साइड पे सर मैं नहीं गया हूँ मनीष इसकी, क्योंकि जनरल सर ये भी सर बहुत अब हम जो न्यू आर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी भी ऐड करेंगे। एक आर्टिकल सर मैं पढ़ रहा था, उसमें अभी जो 2020 में आई है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंट्रलाइज जो जितने भी नेटवर्क हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। व्हाई इट इज सो डेंजरस? अगर एक आउटसाइडर आ जाता है, आपका जो सेंट्रल सिस्टम है उसको हैक कर लेता है, हवा में जितने भी पैकेट डिले हो, नेटवर्क कितना भी एफिशिएंट हो, उसकी एफिशिएंसी तो वहाँ पे नहीं रहती कि आपने डेटा को चुरा लिया, आपने उसकी डेटा को फोर्स कर लिया है या आपने उसमें कुछ और उसमें ऐड की। सर ये डिराइव हुआ है सर, और मैंने इससे पहले भी जो एक लिस्ट मैंने प्रोटोकॉल्स को दो उसमें फैमिलीज में डिवाइड किए, एक मैनेट का है, एक प्लैनेट का है, जो कि सर यहाँ पे ये प्रोटोकॉल जो मैनेट से ही प्लैनेट डिराइव हुए हैं सर। इस वजह से ये इसका बहुत सी फीचर्स मैनेज इंट्रोड्यूस एडहॉक नेटवर्क जो है हमारे पास, प्लैनेट भी एक एडहॉक के जरिए ये जो है प्लैनेट अपनी टोपोलॉजी को चेंज करता रहता है, इसी तरह मैनेट भी करता रहता है, मैनेट भी करता है। ये एक चीज कन्वे नहीं कर पा रहा जो इसका मेन स्कोप ऑफ द रिसर्च ये है कि प्लैनेट में ये है कि पर सेकंड पोजीशन बहुत अब्रप्ट चेंज हो रही है, प्लैनेट में भी चेंज हो रही है, बट इट इज पर सेकंड भी होती है, बट इट इज अनलिमिटेड ज्योग्राफी। अब इसमें ज्योग्राफिकल एरिया आपका मतलब ये एक सेकंड में है तो दूसरे सेकंड में 100 मीटर ऊपर आगे चले, तो इस वजह से इनका नेटवर्क है जल्दी एस्टैब्लिश करना। तो मेरिट में भी एस्टैब्लिश होता है, लेकिन इसमें आपको फिर डिसीजंस लेना पड़ता है। During your presentations, you talked about the how the network अपने protocols को manage specifically designed for the planets, primarily the requirements of planets. तो आप उन protocols को क्यों target किया और उसकी कुछ improvement लाने की कोशिश की? सर एक derived protocol या जो आपके you taken a protocol that is derived from planets.
So what you can consider a protocol that is specifically designed for fax? सर इसकी सर अगर मैं बैक पे चला जाऊँ सर, जो मैं स्टडी कर रहा था सर, तो मैंने पहले सारे जो एफएसआर की जितनी भी प्रोटोकॉल जो फेनेक्स के जितने भी प्रोटोकॉल थे उसको मैंने एनालिटिकली एनालाइज किए कि कहाँ पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल लैग कर रहा है। सेकंड, इसमें एफएसआर मैंने क्यों लिया हुआ है यहाँ पे सर, मैंने इसलिए लिए कि एफएसआर जो ये मोर डेंसर नेटवर्क के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, हमने एक डेंसर नेटवर्क को लेना है जो कि बाकी जितने प्रोटोकॉल है वो नहीं ले रहे, इस वजह से हमने एफएसआर प्रोटोकॉल को लेके यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया। ड्रोन में यूजुअली मेरे ख्याल में डेंसर होना नहीं चाहिए। जी सर। ड्रोन वाले नेटवर्क्स पर असूलन डेंसर इतना होना नहीं चाहिए। सर ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। मैं तो आपकी वो अडॉप्शन इस पर बात कर रहा हूँ कि आपने क्यों सिलेक्ट किया है ऐसा। जी। ये वो डेंसर तो ज़्यादा टारगेट है, और मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन की यूजुअली तो डेंसर होती है। जी। फॉर एग्जांपल अगर आप थ्रू आउट कंट्री एक नेटवर्क बनाना चाहें, बड़ा नेटवर्क को डेंसर country flying complete network बना तो रहे हैं। आपके एग्जाम्पल में आप सिनेरियो दिया हुआ है, उस सिनेरियो के साथ बात कर रहे हैं। जी सर। What essentially you have considered? मैंने यहाँ पे सर 30 मैंने सर यहाँ पे 30, 60 and 90 नोड्स दिए हुए हैं ताकि आपने प्रॉपर जनरल एनालाइज कर सके कि अगर हम एफएसआर को लेस डेंसर, अगर आपने लेस ऐसी स्टडी मौजूद है जिसमें 6 पोर्ट यूएवी दी है, ज्यादा से ज्यादा 10 यूएवी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको मोर डेंसर पे अप्लाई किया 30। डेंसर वाली की बात करें अगर नाइटीरिया तो आपके प्रोटोकॉल आपकी ग्राफ में दूसरे वाले के थ्रूपुट ज़्यादा डिले का ये जो है ये नीचे वाला इसके अंदर में एलटीडी यूटीसी So ATS TV नीचे वाला नीचे वाला विषय में सर इसके नीचे जो है expand करें इसको नीचे telescope plus देखिए आपसे वो जब आपने पढ़ाया नाइटीरिया तो उनकी बेहतर हो गया तोरा की सर ATS TV इसकी सर ये स्पीकर फीचर का आप सर आसान फिगर 5 मार्क फिगर 5 मार्क इसमें मैंने ये कमेंट दो सर प्रोटोकॉल is the highest throughput in internet network. What do you think? Why the throughput is increasing with the number of nodes in the network? सॉरी सर ये फिगर 5 मार्क फिगर 5 मार्क है इस तरह की बात नहीं होती। This is speed addressing. 1.6 This is speed. सर this is our